हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी 7 ਲੈਕਚਰ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸੈਲਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ जाके फॉर्म एंटर कर दी है। ठीक है, दैन उस तो बाद आप देखा सीगा कि किवें सैलरी देने तो बाद जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਉਹਦੀ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਆਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ 15 ਤੋਂ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ, ਸੈਲਰੀ ਰੈਮੂਨੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। जिद्दां ही मेरी हल्की हल्की डिस्कशन लॉजिक बेसिक्स क्लियर हो जाने हैं, उस तो बाद फिर आप बड़े क्वेश्चन पकड़ने स्टार्ट कर देने हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20000 ਹੈ ਬਟ ਸੈਲਰੀ ਤੁਹਾਡੀ 25000 ਦੀ ਬਣਿਆ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਕਰਦਾ, ਦੋ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੰਨ ਲਓ 25000 ਹੈ, ਦੋ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਸਾਡਾ 30000 ਬਣਿਆ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ 20000 ਇੱਕ ਦਾ 10000 ਬਣਿਆ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜਨਰਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਆ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗੇ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗੇ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਪਾਰਟਨਰਸ ਡਰਾਇੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੂਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਪਾਰਟਨਰਸ ਡਰਾਇੰਗਸ। कुछ भी डेप्थ विच करने तो पहले यार एक सिंपल जिहा फंडा तुसीं समझ लो कि इंटरस्ट ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੌਜੀਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਜਦ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ तीन ਮੇਜਰ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਾਉਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਾਉਂਟ ਮੰਨ ਲਓ 12000 ਹੈ, ਦੈਨ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। ठीक है, तीसरी चीज ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, 12 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਕਰੂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। 4 ਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 4 ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਲੌਜਿਕਸ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ 2020 ਔਰ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰੂਗੇ ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰੂਗੇ, 12 ਮੰਥਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜਾ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਚੱਕਦੇ हैं, एक बेसिक चीज देखते हैं। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਆ ਫੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 12000 ਜਾਂ 10%। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਆਇਆ 1200। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਦ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜੋ 1200 ਇੰਟਰਸਟ ਆਇਆ ਇਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, 6 ਮੰਥਸ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆ 12000 10/100 ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹ 1200 ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾਗਾ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰਹਿੰਦਾਗਾ, ਸੌਰੀ ਇਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰਹੇਗਾ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ये 12 महीने का इंटरेस्ट है 1200 डिवाइड बाय मैं 12 कर दूंगा, जितने डिवाइड बाय 12 करूंगा, ठीक है, ये रिजल्ट आएगा 100। ये ਜਿਹੜਾ 100 ਆਇਆ ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਇਆ 1 ਮੰਥ ਦਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇਨਟੂ ਤੁਸੀਂ 6 ਕਰ ਦੋਗੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 600। कहने का मतलब है कि छोटी ही कैलकुलेशंस
जो एक इक्वेशन बन गई है इस तरीके नाल बनदी है, ठीक है, अमाउंट रेट इनटू टाइम, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जेड़ा होंदा ओ, ठीक है, जिदे विच आप 12000 10/100 एनी की तुसी कैलकुलेशन रखोगे वो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट निकाल के देगी। बट अगे जाके तुसी की करना है, अगर तुम 12 महीने का चाहिए तो छड़ दो इथे 12000 10/100, ठीक है, तो 1200 आ जाएगा, 12 महीने का आ जाएगा। बट मान लो अगर तुम चाहिए 3 महीने का इंटरेस्ट, फिर तुसी क्या करना, एनी की जो कैलकुलेशन है 1200 निकाल के देगा दी, 12 महीने इंटरेस्ट निकाल के देगा दी, तो अगर 3 महीने का चाहिए तो डिवाइड बाय 12 करना पड़ा और इनटू कितना करना पड़ा 3, तो ऑटोमेटिकली फिर ये 300 आ जाएगा और ये जो इंटरेस्ट आएगा ਤੁਹਾਡਾ 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा। सो ये सिंपल जी कैलकुलेशन इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वास्ते ये चीजें हल्का या बेसिक था, ठीक है। ਹੁਣ यही बेसिक्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज करना का बड़े क्वेश्चंस ਵਿੱਚ देखते हैं, ध्यान देना। होप ਤੁਹਾਨੂੰ समझ लग गया होवे। इस तो बाद एक और बेसिक जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एक उम्मीद बस थोड़ा देख लेंगे अपन अ फॉर्म और अ पार्टनर। जो लॉजिक है वो ये है कि फॉर्म को कैश बैलेंस है, मान लो कुछ भी है 6 लाख, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ पार्टनर कुछ विड्रॉ कर रहा है, मान लो 12000 विड्रॉ कर रहा अपने पर्सनल या डोमेस्टिक यूज वास्ते, इसी चीज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡਰਾਇੰਗਸ। सो ਤੁਸੀਂ देख रहे हो कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फॉर्म ਦਾ पैसा यूज कर रहा है पार्टनर, जब फॉर्म ਦਾ पैसा पार्टनर यूज करेगा तो इस केस ਵਿੱਚ पार्टनर ਨੂੰ इंटरेस्ट देना पैना फॉर्म, ठीक है, ऑब्वियसली क्या है। सो इंटरेस्ट द फ्लो इस साइड देगा पार्टनर तो फॉर्म पर, जिन्हें मैं बोलूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दूसरी चीज पहले दसा था पिछले लेक्चर में कि जिन्नी भी अकाउंटिंग आप करनी है वो सारी अकाउंटिंग पार्टनर वालों नहीं करनी है। जो जर्नल लेजर डायग्राम जो कुछ भी है, जो कुछ भी बनाया जाएगा सारी अकाउंटिंग फॉर्म करे। सो यदि भी जनरेटेड फॉर्म ही पाएगी तो गौर करना जरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है पहले डिस्कस किया बट फिर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर फॉर्म ਨੂੰ दे रहा ਤਾਂ ਇਹ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म वास्ते बेसिकली ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ है एक इनकम। ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ याद रखना। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣੀ है कि ਇਹ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਫॉर्म ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, वो अलग-अलग केसेस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਨਾਗਾ। 2 ਤੋਂ 3 मेथड ਹੁੰਦੇ ਆ। मैं पहले मेथड ਤੋਂ स्टार्ट करूंगा हूं कि किਵੇਂ ਆਪਾਂ देखना है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अब एग्जांपल ना स्टार्ट करते हैं। देखो आर्यन withdrew rupees 12,000 in the beginning of each month. Beginning of each month. Calculate interest on Aryan's drawings at the rate 10% per annum for the year 2020-21। So एक सिंपल सा क्वेश्चन ध्यान रखना है, इसमें मेथड समझाना है। सो आराम से चलूंगा। वो क्या बोल रहा है कि आर्यन विड्रू रुपीस 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ये पहली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि आर्यन हर महीने की पहली तारीख ਨੂੰ 12,000 विड्रॉ करता है, फॉर्म का पैसा निकालता है, ड्राइंग करता है बेसिकली। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन आर्यन्स ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर 2020-21। ठीक है, बिल्कुल तसल्ली से चलूंगा, बड़ी गौर ना देखना, ठीक है। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है इथे घट्टो घट 2 तो 3 लेक्चर लग जाने हैं दोनों, ठीक है। हौली हौली छोटे छोटे क्वेश्चन तो ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ बड़े बड़े क्वेश्चन तक मूव करते चलनागा।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੇਸਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਆ ਫੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। डेट ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, टाइम पीरियड, कैलकुलेशन, फाइनली इंटरेस्ट। सो आराम नाल सब तो पहले पहली ड्राइंग जो पहली बारी आर्यन ने फर्म के अकाउंट विचों पैसा निकालिया या ड्राइंग की वो की साल साडा स्टार्ट हो रहा 1 अप्रैल तो, ठीक है। और वो बोल भी रहा आर्यन विल डू ₹12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। साल दे हर महीने की पहली तारीख ਨੂੰ ही आर्यन 12,000 निकाल लेंदा है। साल जो गा साडा गा वो ए है 1 अप्रैल तो स्टार्ट हो रहा 2020 तो लेके 31 मार्च 2021 तक ये साडा साल है। साल का पहला महीना जो स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल तो, और आर्यन जो ड्राइंग करे करता वो स्टार्टिंग में ही कर लिया करता। जिमें पहला महीना स्टार्ट होया उसी दिन उन्हें ड्राइंग कर ली। कहने का मतलब जो दी पहली ड्राइंग हुई वो इस तारीख में हुई 1 अप्रैल 2020। इस तारीख में इन्हें ड्राइंग कर ली। कितनी ड्राइंग कर ली 12,000 अराउंड। हुन उस तो बाद दूसरी ड्राइंग कद हुई, क्वेश्चन साफ बोला गया था आर्यन विल डू ₹12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। पिछले साल के दौरान या साल के दौरान हर एक महीने की स्टार्टिंग वाले दिन ही आर्यन 12,000 निकाल लेता है, ड्राइंग कर लेता है। कहने का मतलब उसकी दूसरी ड्राइंग कद हुई 1 ऑफ मई, अगला महीना अप्रैल का कर ली। फिर उस समय मई महीने में स्टार्टिंग में उन्हें कितना पैसा निकाल लिया 12,000। उसके बाद अगली ड्राइंग अगला महीना जी में स्टार्ट हो रहा, अगला महीना जून। जून की कद बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब हर महीने की स्टार्टिंग डेट पे। कहने का मतलब जो तीसरी ड्राइंग आर्यन करे करदा वो इस तारीख ਨੂੰ 1 जून 2020 12,000 को रखना। हर महीने की पहली तारीख और हर बार जो ड्राइंग करे करदा वो करे करदा 12,000 12,000 और 12,000। चौथी ड्राइंग 1 जुलाई 2020 अमाउंट 12,000। और ये मैनू किथों पता लग रहा, वो बोला गया था आर्यन विल डू ₹12,000। आर्यन विल डू ₹12,000 इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग एक तो पहली तारीख और आगे बोला गया था ईच मंथ। हर महीने की पहली तारीख ਨੂੰ आर्यन विड्रॉ करेगा था 12,000। अगली ड्राइंग इसी तरीके ਨਾਲ 1 अगस्त 2020 12,000। अगली ड्राइंग 1 सितंबर 2020 12,000। अगली ड्राइंग 1 अक्टूबर 2020 12,000। अगली ड्राइंग 1 नवंबर 2020 12,000। अगली ड्राइंग 1 दिसंबर 2020 12,000। सो ऑन। जी 10वीं ड्राइंग का ध्यान रखियो कि साल खत्म हो गया, अगले साल भी मूव करे कर दे 1 जनवरी 2021 12,000। 11वें थे फिर 1 ऑफ फेब 2021 12,000। अगली 1 मार्च 2021 12,000। बस क्योंकि ਹੁਣ अगर मैं 13वीं ड्राइंग कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो 13वीं ड्राइंग आ जाएगी 1 अप्रैल 2021, वो साढ़े साल तो बाद चलेगी।
क्योंकि साडा साल जेड़ा खत्म हो रहा वो खत्म हो रहा 31 मार्च 2021 ਨੂੰ। सो अकॉर्डिंगली ए ਦੀ ਡਰਾਇੰਗਸ ਹੈ और इते ਹੁਣ फाइनली ਆਪਾਂ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ਹੁਣ बड़े गौर ਨਾਲ देखना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ जो मैथड मैं समझा रहा है मैं अभी तक नाम नहीं दस्या क्योंकि पहले आप मैथड के करैक्टर देखने हैं, करैक्टर तो इसका नाम डिफाइन करना है। सो करैक्टर क्या था, दो करैक्टर ਤੁਹਾਨੂੰ दिख गए, ठीक है। और दो करैक्टर ਜਿਹੜੇ दिखे हैं, पहला करैक्टर ए कि इस चीज विच जो बंदा है वो ड्राइंग जो है वो रेगुलर इंटरवल से कर रहा है। 1 अप्रैल 1 मई 1 जून 1 जुलाई 1 अगस्त 1 सितंबर 1 अक्टूबर एक रेगुलर इंटरवल है, एक यूनिफॉर्म टाइम पीरियड रखा करदा वो हर महीने ਦੇ पहली तारीख ਨੂੰ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ और दूजी ड्राइंग ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਰਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗਸ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ, दूजी कंडीशन है कि वो हर बार जब भी ड्राइंग करा करदा, जब भी फॉर्म का पैसा निकाला करदा, हर बार वो कितना निकाला करदा, हर महीने की पहली तारीख ਨੂੰ 12000 ही निकाल रहा, 12000 ਤੇ दो करैक्टर हो गए। जब ये दो करैक्टर ਤੁਹਾਨੂੰ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले क्वेश्चन ਵਿੱਚ देखे जाओगे तभी ये वाला मेथड अप्लाई करना, हजे मेथड कंप्लीट नहीं होया। सो अकॉर्डिंगली दो चीजें पता लग गया कि रेगुलर इंटरवल से ड्राइंग होएगी, एक फिक्स टाइम पीरियड रहेगा, पहली ड्राइंग दूसरी ड्राइंग तीसरी ड्राइंग हर ड्राइंग के बीच फिक्स टाइम पीरियड रहेगा और जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग रहेगा वो हमेशा रहेगा यूनिफॉर्म, तभी ਆਪਾਂ ਇਹ मेथड लगाना है। ਹੁਣ आराम ਨਾਲ चलते हैं। स्टार्टिंग ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ कि ਆਪਾਂ जनरल चीज क्या देखते हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते वक्त, पहली चीज एक अमाउंट का पता होना चाहिए, दूसरे नंबर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए, तीसरे नंबर पे ਸਾਨੂੰ टाइम पीरियड का पता होना चाहिए, ठीक है। ਹੁਣ ਧਿਆन देना ਆਪਾਂ पहली ड्राइंग के बारे में गल करते हैं, बाकी सारी ड्राइंग्स ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। फर्स्ट ड्राइंग ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ और ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ 12000, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਉਹਨੇ 12000 ਨਿਕਾਲਿਆ, ओके। ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ तो 1 अप्रैल 2020 खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021। इस केस विच पार्टनर जो फॉर्म का पैसा यूज कर रहा है 1 अप्रैल तो पैसा कट लिया, मान के चलनागा कि 31 मार्च 2021 तक पैसा यूज करेगा, ऑटोमेटिकली जो इंटरेस्ट पार्टनर को देना पड़ेगा वो 1 अप्रैल तो लेके 31 मार्च 2021 तक या 1 अप्रैल 2020 तो लेके 31 मार्च 2021 तक। अकॉर्डिंगली अगर इत्थे ਆਪਾਂ टाइम पीरियड देखिए तो टाइम पीरियड ਤੁਹਾਨੂੰ साफ दिख रहा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च करके कुल मिला के ये 12000 तेरा इंटरेस्ट बनेगा वो 12 महीने का बनेगा। तो अकॉर्डिंगली आ 12000 पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो 12 महीने का बनेगा और जो अकॉर्डिंगली जो कैलकुलेशन रहेगी वो साडी ए रहेगी 12000 इनटू 10/100। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है जिद्दे पे कैलकुलेशन करते हैं वो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट निकाल के देती है। बट फिर भी मैं 12/12 लिख रहे थे, अगर किसी ने ना भी लिखना हो तो भी ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इतने जो पहली ड्राइंग है उते जो इंटरेस्ट बन गया वो टोटल बन गया 1200 का, और ये जो इंटरेस्ट बनया करता है 1 अप्रैल 2020 तो लेके 31 मार्च 2021 थे पहली वाली ड्राइंग से। हुन आगे चलते हैं 1 मई 2020 ये इस दिन उन्होंने ड्राइंग की 12000 की और इते जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितने महीने का बनेगा। इन्हें ड्राइंग की 1 मई 2020 ਨੂੰ और साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 ਨੂੰ। ऑटोमेटिकली सानू पता लग रहा मई का महीना पूरा आ जाएगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च कुल मिला के इत्थे जो ब्याज बनेगा वो 11 महीने का बनेगा, ठीक है। कित्थों लेके कित्थे तक वो बनेगा 1 मई तो लेके 2020 तो लेके 31 मार्च 2021 तक कुल मिला के ਤੁਹਾਨੂੰ दिख रहा अपने आप ही ਇੱਥੇ इन्ने टाइम पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮਹੀਨੇ कैलकुलेट हो रहे। तो इस केस ਵਿੱਚ जो अगली ड्राइंग है उते जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 11 महीने का। ऑटोमेटिकली जो कैलकुलेशन रहेगी वो इस तरीके नाल 12000 10/100 अगर इतना कैलकुलेट करिए तो 1200 रिजल्ट आया करदा, बट ये 1200 ਜਿਹੜਾ इंटरेस्ट आ रहा ये पूरे 12 महीने ਦਾ है। मैनू इनु फिर फिल्टर करना है, मैनू लेना है 11 महीने का, डिवाइड 12 कर दूंगा इनटू कर दूंगा मैं 11, ऑटोमेटिकली ये तेरा इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ 1100। सो ऑन जो 1 जून 2020 है उस दिन ਜਿਹੜੇ 12000 निकाले उसे फर्म पार्टनर ਨੂੰ फर्म ਨੂੰ जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो 1 जून तो लेके 31 मार्च 2021 तक। तो ऑटोमेटिकली अगर ਤੁਸੀਂ कैलकुलेट करोगे जून का महीना पूरा है बेटा 1 जून तो स्टार्ट होया करता है, जून का महीना पूरा आ गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कुल मिला के इस जगह पे ਜਿਹੜੇ महीने बन गए वो ਤੁਹਾਡੇ बन गए 10, ठीक है। सो एक बार ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 10 ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ 9 ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, 8 ਮਹੀਨੇ ਆ 7
आ 6, ये 5, ये 4, ये 3 महीने, ये 2 महीने और ये 1 महीने लास्ट। ठीक है, सो ऑन अपनी कैलकुलेशन होती चलेगी। सो इथे जेड़ा हैगा 12000 10/100 एनी की कैलकुलेशन करूंगे तो 1200 आएगा, 12 महीने का इंटरेस्ट, बट मैंने 12 महीने नहीं चाहिए, मैंने 10 महीने चाहिए, तो इंटू 10/12 कर दूंगा, ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा 1000। सो इसी तरीके ना हर एक महीने की कैलकुलेशन आप करते जानागा, बट गौर रखना अपन वे मेथड यूज नहीं करनागा, बट ये मेथड जो लॉजिक निकलने हैं, बेसिक निकलने हैं, इस जगह तो निकलने हैं, सो ध्यान में देखना। 12000 10/100 इथे का इंटरेस्ट 9 महीने का है, वो 1 जुलाई 2020 तो लेके 31 मार्च 2021 तक कुल मिला के 9 महीने बन गए। बाय 12 800 12000 10/100 इंटू 7/12 700 12000 10/100 इंटू 6/12 600 12000 इंटू 10/100 इंटू 5/12 500 12000 10/100 इंटू 4/12 400 12000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 300 12000 10/100 इंटू 2/12 200 एंड लास्ट वाली ड्राइंग जी वो कर रहे हैं वो करा करता 1 मार्च 2021 सो 1 मार्च में करें करता 31 मार्च तक उन्हें इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट का टाइम पीरियड रहेगा वो सिर्फ 1 महीने का रहेगा। ऑटोमेटिकली इथे जो इंटरेस्ट आ गया 12000 10/100 1/12 तो कुल मिला के 100 रुपए। गौर करना आर्यन ने 12 वाली ड्राइंग की थी 1 साल के दौरान, हर महीने के स्टार्टिंग बीच और साल के बीच 12 महीने, तो हर महीने स्टार्टिंग बीच ड्राइंग करा करना। कुल मिला के अगर मैं टोटल करूं जो दी टोटल ड्राइंग से बेटा वो ए है 1,44,000 और उते हर एक ड्राइंग से ਆਪਾਂ अलग-अलग कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट निकाला है। जो इंटरेस्ट निकला करता टोटल वो ए निकला करता टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जीरो 3 12 12 20 27 27 6 33 33 34 38 आई थिंक 7800 बनाएगा था 7800 एक बारी मैं कैलकुलेशन पे भी चेक कर लेना है 1200 1100 1000 प्लस 900 प्लस 800 प्लस 700 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 100 बिल्कुल ये बन गया ਤੁਹਾਡਾ 7800 ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ बट गौर करना ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 6 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 7 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। गौर करना जो शॉर्टकट है वो क्या रहेगा क्या मेथड रहेगा आ देखना ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ क्या करना है टोटल ड्राइंग्स निकाल लो बंदे दियां देखो हर महीने की स्टार्टिंग में जो 12000 ड्रॉ करे करदा पर 12 वाली भी ड्रॉ करे करदा तो ऑटोमेटिकली जो दी ड्राइंग्स बनियां 1,44,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ਤੁਹਾਡਾ 10% पर एनम। ठीक है ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਨ क्योंकि जब भी ਆਪਾਂ इंटरेस्ट निकालना है शुरू ही दस्या सीगा तीन कंटेंट जरूरी ਹੁੰਦੇ ਹੈ अमाउंट रेट और टाइम पीरियड। जिदा ਤੁਸੀਂ इस जगह पे भी देख रहे हो कि टाइम पीरियड हर बारी मैं टाइम पीरियड यूज करता है। ठीक है ओके 12 महीने 11 महीने 10 महीने 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हर मेरी अलग अलग टाइम पीरियड यूज करता है। बट गौर करना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ
अलग-अलग ड्राइंग का अलग-अलग इंटरेस्ट निकाला, बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या ਕੀਤਾ, जो शॉर्टकट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ही एक बारी 12000 * 12 के टोटल 1,44,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, टाइम पीरियड ਹੁਣ जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि टाइम पीरियड भाजी कितना रहेगी, टाइम पीरियड कितना रहेगी, क्या टाइम पीरियड रही है, क्या 12 महीने इंटरेस्ट कट दिए, 11 ਦਾ 10 ਦਾ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੱਢੀਏ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਵਰੇਜ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐਵਰੇਜ। एवरेज किमें करना है, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਰਹੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ वर्किंग नोट, कितने महीने का इंटरेस्ट कटिए ये चीज है। तो वर्किंग नोट आ देखो, वर्किंग नोट जो फॉर्मूला है आ फॉर्मूला थोड़ा एवरेज टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड वास्ते ये फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ये ਤੁਹਾਡਾ एवरेज टाइम पीरियड ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ और गौर करना। सबसे पहला कंटेंट वो ये बोला करता कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। फिर उस बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये समझना ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ इस साइड ਤੇ पहला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। आ चेक करो कि उन्हें पहली ड्राइंग कद की है, ठीक है। जो ने पहली ड्राइंग की है वो आ की है 1 अप्रैल 2020 और उसके बाद अगला कंटेंट था टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जो लास्ट ड्राइंग है वो देखो वो कद की उन्हें 1 मार्च 2021। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾਗਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग जो की उन्हें इस तरीके ਨੂੰ ਕੀਤੀ 1 अप्रैल 2020 और ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ टाइम ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਕੀਤੀ फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल 2020 टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹਿ ਗਿਆ। 1 अप्रैल 2020 ਨੂੰ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ 31 ਮਾਰਚ 2021 और ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਡਰਾਇੰਗ। ਪਹਿਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਚ ਗਿਆ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ 1 अप्रैल 2020 ਨੂੰ, ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना टाइम रहेगा साडा चेक करो। 1 अप्रैल 2020 तो लेके 31 मार्च 2021 तक कितना टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली देख रहा कि वो टाइम पीरियड है 12 मंथ्स। सो पहला कंटेंट पूरा हो गया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल तो लेके 31 मार्च 2021 तक कितना टाइम पीरियड बचा सी, ठीक है। सो इथे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जो लास्ट ड्राइंग उस बंदे ने की है, आर्य ने की है, वो की है 1 मार्च 2021। इस जगह ते उन्हें लास्ट ड्राइंग की है इस साल दी। इस तो बाद कितना टाइम पीरियड रहेगा साल खत्म होने वास्ते वो चेक करो, क्योंकि वर्ड है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग की 1 मार्च 2021, उस तो बाद साल खत्म होने कितना टाइम पीरियड रह गया 31 मार्च 2021। सो कुल मिलाकर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 ਮਹੀਨਾ बस, दैट्स इट। तो दूसरा कंटेंट पूरा हो गया 1 मंथ डिवाइडेड बाय कितना कर दूं 2। ऑटोमेटिकली जिस वेले मैं कैलकुलेट कर दूंगा 12 + 1 13 महीने हो गए, 13 महीने डिवाइड बाय 2 कुल मिला के ये ਤੁਹਾਡਾ आ गया 6.5 मंथ्स। कहने का मतलब क्या है कि टोटल ड्राइंग्स 1,44,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, टाइम कितना लगी हूं जब सारी ड्राइंग्स ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਜ ਕੱਢੀਏ, क्या पूरे साल ਦਾ ਕੱਢ ਦਈਏ, क्या 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, क्या 11 ਦਾ, क्या 12 ਦਾ। सो ठीक है, जिस वे आप इकट्ठी सारी कैलकुलेशन करनी है तो टोटल ड्राइंग्स 1,44,000 दी होगी है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर है ना, बट टाइम पीरियड कितना लगी है यार, 12 महीने 11 10 9 कितने महीने लगी आखिरकार, क्योंकि ड्राइंग तो सारी इकट्ठी करती हैं। तो इस करके ये सारे टाइम पीरियड वास्ते ਆਪਾਂ 12 नहीं लेने हैं, 1 नहीं लेना है, 11 कुछ भी लेना है, सिंपली इस टाइम ਨੂੰ क्या कर देना है एवरेज। बट एवरेज करने का भी एक तरीका रहेगा, वो ਤੁਹਾਡਾ फार्मूला आएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਉਹਨੇ ਕਦ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 12 ਮਹੀਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲੈਫਟ ਆਫਟਰ ਲਾਸਟ ਡਰਾਇੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਸਟ ਡਰਾਇੰਗ ਕਦ ਕੀਤੀ 1 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ 1 ਮਾਰਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਡਰਾਇੰਗ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਚਿਆ ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਡਰਾਇੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਚਿਆ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ। 12 + 1 13, 13 / 2, 13 / 2 ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਐਵਰੇਜ ਆ ਗਈ 6.5 ਮੰਥਸ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਉਹੀ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋਗੀ। ਟੋਟਲ ਡਰਾਇੰਗ 1,44,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर है ना, एंड जो टाइम पीरियड जो कटना है वो अपा इंटरेस्ट करना है 6.5 मंथ्स का, 6.5 महीने वास्ते अपा ब्याज करना है टोटल ऑन 1,44,000। तो अकॉर्डिंगली हुन जो साडी कैलकुलेशन रहेगी वो ए रहेगी, इंटरेस्ट 1,44,000, ये टोटल ड्राइंग कर दी अपा सारी 10/100। बेटा जिद्दे मैं ये कर दिया करदा ना, उस तो बाद आ चीज आया करदी ਤੁਹਾਡੀ 14,400। ਇਹ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। तो ठीक है, मैं 14,400 डिवाइड बाय 12 कर दूंगा इनटू 6.5 कर दूंगा। अब मेरी कैलकुलेशन रहेगी, मैं ऐसे नीचे नहीं करूंगा, इसी चीज नु 12 और 6.5 नु फार्मूला में फिट कर दूंगा। 1,44,000 1,44,000 इनटू 10/100 करके 40,400, फिर मैं तोड़ूंगा डिवाइड बाय 12, वो 1 महीने का इंटरेस्ट आ गया, जो मैंने इंटरेस्ट निकालना 6.5 महीने का, तो इनटू में कर दूंगा 6.5, ऑटोमेटिकली वो आएगा ਤੁਹਾਡਾ 7,800 रुपीस। ठीक है, फिर दोबारा तो एक बार आ चीज देख लो, 1,44,000 10/100 जितने ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 14,400। मैं पहले भी ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, जब भी ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਟਰਸਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਨਿਕਾਲਣਾ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, तो ऑटोमेटिकली इन दैट केस ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੇ, डिवाइडेड बाय ये 14,400 तो 12 महीने इंटरेस्ट होंगे, डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा तो 1 महीने का आ जाएगा। फिर 1 महीने का नहीं चाहिए तो 6.5 महीने का, तो इनटू ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੂੰਗੇ 6.5। इसी चीज ਨੂੰ मैं ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ 1,44,000 इनटू 10/100 6.5 अपॉन 12, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7,800। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਥਡ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਡਾ 7,800 ਆਇਆ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਅਪਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਕਰਦਾ 7,800। एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾਗਾ, ਬਟ ਲੌਂਗ ਵੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ जब भी ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦ ਉਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬੈਠਣੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ पूरी होगी दूसरी नहीं है, नहीं दोनों ही पूरी होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1 वो ए है, एक होनी चाहिए रेगुलर इंटरवल या फिर मैं बोल लूं यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ ड्राइंग। और कंडीशन नंबर 2
यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। यूनिफॉर्म मतलब कि सेम, ठीक है। आज चेक कर लो कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 का मतलब ये होया, वो बोल रहा है कि रेगुलर इंटरवल या फिर यूनिफॉर्म इंटरवल, मतलब कि रेगुलर इंटरवल ਤੇ ड्राइंग होनी चाहिए। पहली ड्राइंग की 1 अप्रैल ਨੂੰ, ਫਿਰ 1 ਮਈ ਨੂੰ, ਫਿਰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਫਿਰ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। हर ड्राइंग ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ड्राइंग ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ड्राइंग ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ड्राइंग ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। दूसरी चीज क्या है, दूसरी कंडीशन है यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ ड्राइंग। यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ ड्राइंग का मतलब ये होया कि ड्राइंग्स का जेड़ा अमाउंट, हर एक ड्राइंग का अमाउंट जेड़ा रहना चाहिए वो रहना चाहिए सेम। आप पूरे क्वेश्चन इस पूरा होया 12000 12000 12000 12000 12000 12000 यूनिफॉर्म है। हुन कुछ स्टूडेंट ये पूछेंगे कि सर बाय चांस कंडीशन ना पूरी हुई, कंडीशन कितना नहीं पूरी हुई, जिदा फॉर एग्जांपल पहली ड्राइंग की 1 अप्रैल ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ड्राइंग की उन्हें 1 जुलाई ਨੂੰ, फिर 1 अगस्त ਨੂੰ। ਆਉਣੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। पहले उन्हें 3 महीने के बाद पहली ड्राइंग करने के बाद 3 महीने, फिर उसके बाद फिर 1 महीना, फिर ਇੱਥੇ नहीं लगेगा। कई स्टूडेंट ये बोलेगा कि सर बाय चांस ये रेगुलर इंटरवल हुई 1 अप्रैल ए ठीक है, बट स्टूडेंट बोलेगा कि सर इतने 12000 13000 14000 15000 ड्राइंग कुछ हुई, फिर भी ਉੱਥੇ लगना है। कहने का मतलब है कि ये मेथड ਉੱਥੇ ही लगना है जिस जगह ਤੇ टाइम इंटरवल रेगुलर होवे, ड्राइंग्स इंटरवल सेम टू सेम होवे, फिक्स टू फिक्स होवे जिदा ਇੱਥੇ ਹੋਈ है, प्लस ड्राइंग ਦਾ अमाउंट हर केस ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ अलग। ਹੁਣ स्टूडेंट ये पूछ लेगा एक श्योर मैम और जरूर पूछेगा कि भाई बाई चांस ये चीज ना होवे, ठीक है, फॉर एग्जांपल रेगुलर इंटरवल है ना बट अलग अलग अमाउंट है, तो ठीक है यार अलग अलग अमाउंट है तो अलग अलग अमाउंट वास्ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इस तरीके ਨਾਲ कैलकुलेशन करनी पैनी है। हर ड्राइंग वास्ते अलग अलग कैलकुलेशन करनी पैनी है, ठीक है। बट याद रखना जितने टाइम पीरियड या इंटरवल ऑफ ड्राइंग फिक्स्ड रही, सेम रही, प्लस हर ड्राइंग सेम रही, ਤੁਹਾਨੂੰ एवरेज टाइम पीरियड मेथड यूज कर लेना है, ठीक है। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ड्राइंग सारी ड्राइंग को टोटल कर लो, इकट्ठा कर लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दो और टाइम पीरियड क्या लगा दो एवरेज। ਉਹਦਾ फार्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब कि पहली ड्राइंग तो बाद साल खत्म होने कितना टाइम पीरियड रह गया, प्लस करो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग तो बाद साल खत्म होने कितना टाइम पीरियड रह गया, डिवाइडेड बाय क्या कर दो 2, 12 प्लस 1 करके 13.2 तो ये आ गया 6.5। इसी तरीके दे 5 तो 6 और पैटर्न बैठते हैं जिते बार-बार सीबीएसई वाले क्वेश्चन पूछ लेंगे हैं, ठीक है। ओपन क्वेश्चन नहीं पूछते हैं बट 6 नंबर का क्वेश्चन एक पा ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਟਾਫਟ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ क्वेश्चन करना ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੇਸਿਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਦੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਚੇਂजेस ਵੀ ਦੇ ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਫॉर द टाइम ਬਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੂੰਗਾ, ਓਕੇ। इसी चीज विच देखो चेंज करते हैं, देखो मोहित विड्यू रुपीज 12,000 रख देते इन द, इतने चेंज कर रहे हैं। और एग्जांपल नंबर 2 तो दोबारा तो करनी है, मोहित विड्यू रुपीज 12,000 इन द एंड ऑफ ईच मंथ, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन आरएस, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन मोहित ड्राइंग at the rate 10% per annum for the year 2020-21। so example number 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, क्या चेंज करके लेके आया ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਮੋਹਿਤ ਵਿਡਰੋ ਕਰਿਆ ਗਿਆ 12000 ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ, ਆਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੋਹਿਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ in the end of each month, in the end of each month। याद रखना कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन मोहित ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर 2020-21। हम देखते हैं इस केस में क्वेश्चन किवें चेंज होएगा, ध्यान देना है। देखो सब तो पहले चीज ये देखो कि उन्हें पहली ड्राइंग कद की होनी, साल साडा हुई है 1 अप्रैल 2020 तो स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च 2021 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। साल 1 अप्रैल 2020 ਨੂੰ स्टार्ट होया करदा, मोहित जो है वो ड्राइंग कराया करदा इन द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने दे एंड विच ड्राइंग कराया करदा पूरे साल के दौरान। साल का पहला महीना अप्रैल, हुन अप्रैल दे विच उन्हें बिगिनिंग विच नहीं कीती है ड्राइंग, एंड ऑफ द मंथ कीती है, मतलब उन्हें जो पहली ड्राइंग कीती है इतने डेट चेंज हो जाएगी 30th ऑफ अप्रैल। सो पहली ड्राइंग उन्हें जो कीती है वो 30 अप्रैल 2020। इसी तरीके ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 31 ਮਈ 2020। ਦੈਨ ਫਿਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ
31st July, and August which 31st August, September which 30th September, then October which 31st October, then November which 30th November, then December which 31st December, then January which 31st January, then Feb which 28th of Feb, and March which last which 31st March. So इस केस में डेट चेंज होगी, उन्हें ये बोला है कि मोहित ड्राइंग करेगा एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ साल के दौरान, हर साल ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੈ, डेट जो है वो महीने की लास्ट डेट है, उसी दिन वो क्या कराएगा ड्राइंग। तो देख लो, और ड्राइंग का अमाउंट कितना लिखा हुआ है 12000, पहली ड्राइंग भी 12 दी, दूसरी 12 12 12 12 ये सारी चीज। हुन ध्यान देना जो चेंज आएगा वो इस जगह पे आ जाएगा, देखो पहली ड्राइंग उन्हें की थी 30th अप्रैल 2020, और साल जो खत्म होया करता वो इथे होया करता 31 मार्च 2021। गौर करना बेटा, पहली ड्राइंग की थी 12000 दी, उते कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? इंटरेस्ट तो इथे स्टार्ट होएगा 30 अप्रैल तो लेके 31 मार्च 2021। 30 अप्रैल छोड़ दो, वो तो लास्ट डे ही है एक तरह का, और ये अप्रैल का महीना हट गया, अप्रैल के महीने का कोई ब्याज नहीं देना नहीं पड़ेगा। ब्याज उन्हें देना मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, कुल मिला के इथों लेके इथे तक जो महीने बनने हैं वो ਤੁਹਾਡੇ बनने हैं 11 महीने। तो पहली ड्राइंग 12000 दी, उते ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो 11 महीने ਦਾ। दूसरी ड्राइंग को करा करदा 31 मई, इथे 31st मई। दूसरी ड्राइंग जो दी 12000 दी है, और वो 31 मई ਨੂੰ ड्राइंग कराया करदा। 31 मई मतलब कि मई महीने का लास्ट दिन, उस दिन को हटा दो। अप्रैल और मई चले गए, मई महीने का कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, ब्याज देगा जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च। इथों लेके इथे तक ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਬਚ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕੁੱਲ ਬਚ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ 10। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਸੋ ਔਨ ਇਥੇ ਫਿਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, और अगली ड्राइंग ते 8 महीने का, फिर 7 महीने का, फिर थोड़ा 6 महीने का, फिर 5 महीने का, फिर 4, फिर 3 महीने का, फिर 2 महीने का, फिर 1 महीने का। एंड गौर करना लास्ट वाली ड्राइंग चेकआउट करो। लास्ट ड्राइंग उन्हें वो खुद बोला करता कि एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ साडा साल जो खत्म होया करता ਉਹ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਲਾਸਟ ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਨੂੰ ਜੋ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ ਆ ਦੇਖੋ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2021, ऑब्वियसली ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 0 ਮੰਥਸ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली हुन फिर साडी इंटरेस्ट दी कैलकुलेशंस हो ही रहनी है। पहले 12000 पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब 12000 इनटू 10/100 11/12, इतने का इंटरेस्ट आ गया वो 1100 आ गया। फिर 12000 इनटू 10/100 इनटू 10/12, सो ये 1000 आ गया। 12000 इनटू 10/100 इंटू 9/12, ये थोड़ा 900 आ गया। 12000 इंटू 10/100 8/12, ये 800 आ गया। 12000 इंटू 10/100 इंटू 7/12, ये 700। 12000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 600। 12000 इंटू 10/100 इंटू 5/12 500। 12000 इंटू 10/100 इंटू 4/12 400। 12000 10/100 इंटू 3/12 300। 12000
इंटू 10/100 इंटू 2/12 200 12,000 10/100 इंटू 1/12 100 और आ 12,000 इंटू 10/100 इंटू 0/12 ऑटोमेटिकली ए ने ऑटोमेटिकली इस जगह ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ बट इस दौर ਦਾ इस चीज ਦਾ जोर देना ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ जब ड्राइंग्स ਕੀਤੀ ਉਹ 12 ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ क्योंकि अप्रैल ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ तो 12 ਡਰਾਇੰਗਸ ਹੀ ਹੈ टोटल ड्राइंग्स होती है 1,44,000 दी होनी है एंड जो इंटरेस्ट बने वो टोटल ए बने 1100 प्लस 1000 प्लस 900 प्लस 800 प्लस 700 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 100 होल्ड ऑन मैं एक बार फिर तो चेक कर लेना अपनी कैलकुलेशन 1100 प्लस 1000 प्लस 900 प्लस 800 प्लस 700 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 100 ठीक है ए बना ਤੁਹਾਡਾ 6600 सो ए आ गया ਤੁਹਾਡਾ टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ठीक है बेटा ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਫਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ या फिर एवरेज टाइम पीरियड ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨੂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੇਮ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ हर एक ड्राइंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੇਮ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇਖ ਲਓ 30 31 ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣਿਆ ਕਰਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੇਟ ਤੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਈਚ ਮੰਥ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਈਚ ਮੰਥ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਇਸੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਟੋਟਲ ਡਰਾਇੰਗ 12000 12 ਵਾਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ 12000 * 12 ਕਰਕੇ 1,44,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਨੰਬਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग चेक करो जो पहली ड्राइंग की है उन्हें इस जगह पे की है 30 अप्रैल 2020 इस तो बाद साल खत्म होने ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹਿ ਗਿਆ तो ਇਹ ਚੀਜ਼ बोल रहा है 31 मार्च 2021 चेक करो 30 अप्रैल 2020 तो लेके 31 मार्च 2021 तक कितना टाइम पीरियड आ रहा अगर तुम चेक कर लियो तो कुल मिला के अप्रैल का महीना हट गया होया 30 अप्रैल है मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च कुल मिला के इसके आया करते थोड़े 11 महीने 11 मंथ्स तो इस चीज से वही चीज पूछा जाएगा कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जेड़ा रह गया वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਲਸ ਟਾਈਮ ਲੈਫਟ ਆਫਟਰ ਲਾਸਟ ਡਰਾਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ 31 ਸੌਰੀ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਲ ਦਾ ਥਾ ਉਹ ਮਾਰਚ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੀਤੀ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ पहली ड्राइंग 30 अप्रैल 2020 दी है एंड लास्ट जो है 31 मार्च 2021 दी है सो ऑटोमेटिकली लास्ट ड्राइंग और साल भी खत्म होएगा तो उसी दिन नो 31 मार्च 2021 ਇੱਥੇ 0 मंथ्स सो फिल अप करोगे 11 महीने टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग जो है ਇੱਥੇ आ गया 0 मंथ्स अपॉन 2 टोटल जो बनेगा ਤੁਹਾਡਾ 12 मंथ्स अपॉन 2 ऑटोमेटिकली एक मिनट हाँ ठीक है सॉरी 11 प्लस 0 11 मंथ्स अपॉन 2 ये आ गया तो 5.5 मंथ्स डन सो इन दैट केस टोटल ड्राइंग 1,44,000
रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम बट टाइम पीरियड कितना लेनागा और टाइम पीरियड जो लेनागा ਤੁਸੀਂ एवरेज टाइम पीरियड लेनागा और एवरेज टाइम पीरियड जो ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਉਹ 5.5 ਮੰਥਸ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ तीन कंटेंट एक अमाउंट चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए एक टाइम पीरियड चाहिए जो ड्राइंग्स है अलग-अलग डेट से कितनी गई है ਸਾਨੂੰ टाइम पीरियड ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਜੋ टाइम पीरियड ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ 11 10 8 9 7 6 1 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੇਣਾਗਾ ਉਹ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ 5.5 ਮੰਥ तो ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ 5.5 ਮੰਥਸ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ रहेगी ਫਿਰ ਇਹ रहेगी 1,44,000 into 10/100 ਜਿੱਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲੇਗਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਹੀਦਾ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ तो ऑटोमेटिकली 5.5 अपॉन मैं कर दूंगा 12 अगर मैं इथे कैलकुलेशन करता है चेक कर लेते हैं ठीक है ਇਹ ਫੇਰ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 6600 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੈਥਡ ਲਗਾਓਗੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਏਗਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਥਡ ਲਗਾਓ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਥਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਣਾਗਾ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲ यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ ड्राइंग्स होनी चाहिए यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स होनी चाहिए एक पैटर्न बैठना चाहिए हर बारी वो सेम डेट ते ही ड्राइंग करे हर महीने दी सेम डेट ते ड्राइंग करे प्लस जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग करे हर बारी ਤੁਹਾਡਾ क्या रहे सेम अगर अमाउंट ऑफ ड्राइंग अलग होएगा या फिर पैटर्न अलग होएगा तो उस केस ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਿਕਾਲਣਾ ਪਏਗਾ बट जिस वेले पैटर्न सेम है हर ड्राइंग का अमाउंट सेम है जाओ फॉर एवरेज टाइम पीरियड सारी ड्राइंग्स ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੋ ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है टाइम पीरियड जो है वो किसी पर्टिकुलर ड्राइंग ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾਗਾ ਸਾਰੇ टाइम पीरियड ਨੂੰ क्या कर दो एवरेज ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 इस फार्मूले ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂजेस ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਹੈ क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਆਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਬਟ ਫॉर द टाइम बीइंग ਹਜੇ ਤੱਕ ਇसी ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਚੇਂਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗेगा 15 मिनट चलो एक और हो जाएगा सो नेक्स्ट मूव करते हैं फिर इसी तरीके ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ एग्जांपल ਆਪਾਂ चेक कर लेते हैं ठीक है थोड़ा फास्ट रखूंगा चलो स्लो ही चलते हैं देखो एग्जांपल नंबर 3 सुनील withdraw rupees 12,000 in the ध्यान देना इथे मैं चेंज करता in the middle of each month calculate interest on Sunil's drawing ये तुम्हारी एग्जांपल नंबर 3 है तो दोबारा राइट डाउन करनी है Sunil's drawing at the rate 10% per annum for the year 2020-21 ठीक है ओके हम गौर करना ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ WhatsApp ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਮੰਗਵਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ बोला सुनील विड्रॉ रुपीस 12,000 सुनील ने 12,000 विड्रॉ किया इन द मिडल ऑफ ईच मंथ हर महीने दे मिडल विच जाके और ड्राइंग्स करा करता हर महीने दे मिडल विच साल वही है 2020-21 साल दे 12 महीने हर महीने विच ड्राइंग कराया करता एक फिक्स डेट देती हुई है और जो डेट देती हुई है वो मिडल ऑफ ईच मंथ सो अकॉर्डिंगली ध्यान दो सन फेयर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हुन डेट कर रहे हैं हर महीने और साल दे 12 महीने लिखे हुए हैं ਤੁਹਾਡੇ सामने ठीक है ओके बट हुन डेट चेंज हो जाएगी जो डेट है वो है इन द मिडल ऑफ ईच मंथ तो अप्रैल दा मिडल 15th ऑफ अप्रैल मई दा 15th ऑफ मई जून दा 15th ऑफ जून जुलाई दा 15th सो ऑन हर महीने दे मिडल विच सो आराम नाल पैटर्न बिठा लिया
दूसरी चीज, हर वारी ड्राइंग का अमाउंट जो है वो अलग नहीं है, हर वारी अमाउंट जो रखा गया था सेम। 15 अप्रैल ਨੂੰ 12000, 15 ਮਈ ਨੂੰ 12000, 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ 12000 ਐਂਡ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ 12000, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ 12000, 15 ਸਤੰबर ਨੂੰ ਵੀ 12000, so on as it is। ठीक है, कुल मिला के हर महीने ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਡਰਾਇੰਗਸ ਉਹਦੀਆਂ 12000 ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 144000। ठीक है, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਰਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ वैसे तो सिंपल है फंड है, एवरेज टाइम पीरियड वाला मेथड इथे यूज कर सकते हैं, बट नहीं, पहले ਆਪਾਂ इथों भी कंफर्म कर लेते हैं ताकि चेक हो जाए कि ਆਪਾਂ सही चल रही है, गलत तो नहीं कर रहे। ध्यान आ देखो, सो पहली ड्राइंग कितनी होनी 15 अप्रैल 2020 ਨੂੰ। ठीक है, इथे ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਚੈੱਕ करना है। 15 अप्रैल पहली ड्राइंग इथे है तो लेके साल कितने खत्म होया करता था 31 मार्च 2021। चेक करना पहली ड्राइंग 15 अप्रैल ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰਸਟ पे करना ਪੈਣਾ है। सो बड़े आराम ਨਾਲ देखना, काम करो, पहले 15 अप्रैल ਦੇ 15 दिन ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ साइड ਤੇ रख लो, ये बाद में ऐड कर दूंगे, हाफ मंथ है। उसके बाद चेक करो मई तो लेके मार्च तक कुल मिला के ਤੁਹਾਡੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ 11 मंथ्स। कुल मिला के 15 अप्रैल तो लेके 15 अप्रैल 2020 तो लेके 31 मार्च 2021 तक जो टाइम पीरियड बचेगा बनाया करता जिहदे वास्ते इंटरेस्ट चार्ज होएगा वो ਤੁਹਾਡਾ बन जाएगा 11.5 मंथ्स। सो पहली ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 11.5 मंथ्स तक। दूसरी ड्राइंग जो करेगा करदा वो करेगा करदा 15 मई ਨੂੰ, इथे इंटरेस्ट 15 मई 2020 तो लेके 31 मार्च 2021 तक गौर करना है बेटा। मई ਦੇ 15 दिन ਛੱਡ ਦੋ 2 मिनट वास्ते, हाफ मंथ हो गया। उस तो बाद मई ਤੋਂ क्या कैलकुलेट करो, जितने ਤੁਸੀਂ कैलकुलेट कर रहे हो तो कुल मिला के ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 पूरे महीने और 15 दिन मई दे। तो कुल मिला के ਤੁਹਾਡੇ जो दिन बन गया है या जो इंटरेस्ट चार्ज होना है वो 10.5 मंथ्स वास्ते। ठीक है, नेक्स्ट ड्राइंग है वो है फिर 15 जून ਨੂੰ। अगर कैलकुलेट करते हो तो फिर दोबारा दो 15 दिन जून दे आगे, मतलब जून का आधा महीना साइड पर देखो, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने पूरे। ठीक है, तो हाफ मंथ प्लस 9 मंथ कुल मिला के इथे आ गया ਤੁਹਾਡਾ 9.5 मंथ्स। सो ऑन चलता चलेगा फिर 8.5 months, 7.5 months, 6.5 months, 4.5 months, 3.5 months, 2.5 months, 1.5 months। चेक करो ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ 15 ਮਾਰਚ 2021 इतो लेके 31 मार्च 2021 तक आधा ही महीना आया, तो मैं इनको इधर लिख लूंगा 0.5 मंथ्स, हाफ मंथ या 0.5 मंथ। सो ऑटोमेटिकली उन कैलकुलेशन भी अकॉर्डिंगली चलनी स्टार्ट हो जाएगी। पहली ड्राइंग पे 11.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा 12000 10/100 into 11/5 upon 12। सो ये आगे तो कोल 1150, देन उसके बाद 12000 into 10/100 into 10.5 upon 12। सो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1050 9.5 12
सो ये आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 950 12,000 into 10/100 1.5 divided by 850 0.5/12 सो ये 50 आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ये ਤੁਹਾਡਾ टोटल इंटरेस्ट 1150 प्लस 1050 प्लस 950 प्लस 850 प्लस 750 प्लस 650 प्लस 550 प्लस 450 प्लस 350 प्लस 250 प्लस 150 प्लस 50 कुल मिला के ये बनेगा था 7200 ठीक है सो 7200 ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ नंबर 1 रेगुलर टाइम इंटरवल होनी चाहिए दूसरा है यूनिफॉर्म ऑफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स तो रेगुलर इंटरवल ही है हर महीने 15 तरीक ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ हर ड्राइंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਜੋ ड्राइंग ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੇਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ तो ठीक है टोटल ड्राइंग्स 12000 12 बारी हर महीने में मिडिल कर रहे हैं तो 12 ड्राइंग्स हो गई ना 12000 * 12 करके 1,44,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम हां एवरेज टाइम पीरियड आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं सो अगर आप एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करके देखिए तो क्या बन रहा है फार्मूला वही टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 चेक करो पहली ड्राइंग उन्हें कब कितनी है पहली ड्राइंग उन्हें कितनी है 15th ऑफ अप्रैल 2020 इस तो बाद साल खत्म हो रहा 31 मार्च 2021 15 अप्रैल ਦੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਇਹ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਚਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ 11.5 ਮੰਥਸ ਦਾ तो इस जगह पे जो आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ 11.5 मंथ्स प्लस लास्ट ड्राइंग जो ने कितनी है वो ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ कितनी है 15 मार्च 2021 और साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आधा महीने ਬਣਿਆ ਕਰਦਾ या उनमें बोलना है 0.5 मंथ्स ठीक है सो इस जगह पे आ जाएगा तो फिर कुल मिलाकर इस जगह ते 12.2 ਤੁਸੀਂ जो इस केस ਵਿੱਚ इंटरेस्ट निकालना है तो वो निकालना है 6 महीने का तो टोटल ड्राइंग 1,44,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% टाइम पीरियड ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गया 6 मंथ्स एनई की कैलकुलेशन करूंगे 1,44,000 into 10/100 करके तो वो 14,400 वो जो इंटरेस्ट आएगा वो तक टोटल पूरे 12 महीने रहेगा तो 12 महीने का नहीं चाहिए इस केस में ਤੁਸੀਂ निकालना है 6 महीने का तो वो आ गया ऑटोमेटिकली 7200 चेक करके देख लो दोनों पासे इंटरेस्ट का क्या आ रहा है सेम आ रहा है ठीक है सो विद दिस ये तो एवरेज टाइम पीरियड मेथड है याद रखना ये तभी लगेगा जिस वेले दो कंडीशन जो ऊपर लिखी हुई हैं वो पूरी होंगी अगर वो दो कंडीशंस पूरी नहीं होंगी फिर ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ 16 ਮਈ ਦੀ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡੇਟ ਆ ਗਈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ फिर नहीं लगेगा या तो मान लो एक कंडीशन सारी सेम है कि 15 मिनट इंटरवल सेम टू सेम है टाइम पीरियड दोनों सारी ड्राइंग्स का सेम है 1 महीने का सेम डेट तक रहेगा हर महीने में जाके बट क्या कर रहे हैं ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स जो है वो क्या अलग है तो इन दैट केस भी केस एवरी टाइम पीरियड वाला केस नहीं लगेगा एंड उस केस ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਡਰਾइंग ਦਾ अलग-अलग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰਨ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਵੇਟ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੂਗੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ और दो ਹੋਰ है इस तो बाद जाके फिर अलग तो ये तीन केस एक पैटर्न ਵਿੱਚ है एंड दो केस अलग पैटर्न ਵਿੱਚ है एंड फिर क्वेश्चंस भी पाऊंगा प्लस आज जो तीन केस करवाए हैं ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦੂੰਗਾ, ਕੁਝ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੂੰਗਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਵਰਕਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਹੈ प्लस जो मैं क्वेश्चन एंड ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ग्रुप ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर द टाइम बीइंग ਇੰਨਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ, तो इस करके मैं ये वाला लेक्चर पंजाबी ਚ रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंगली नेक्स्ट लेक्चर। सो फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू सो मच। ठीक है।